स्टार्ट करना पहले. Okay. ठीक है मैंने. Good. Yeah. Hello everyone and finally welcome back after the never-ending Eid holidays. They say they don't let us make the whole house on just one wall. The rumors are right, they don't let us have it all. The person who hate rafts but love rafting, this is architect Sharyar. I use things like these, I'm sorry. Of course, what you say and what you draw needs some structural support. The one who talks sense, this is architect Maheen. And you are finally watching yet a brand new episode of Let's Talk Architect. So in our last episode, we explored the concept of self-branding. कैसे self-awareness in terms of what we want to do in our life और अगर हम उसे align करें हमारी core values के साथ can help us actually stand out in the market. So we all know how architects are. We are wired to experiment, to think out of the box, to make our building stand out, and that's where engineers come in. They help us to execute what we want to make. So they help us execute what we want to make because both these professions are integral to each other, right? So the topic of today's episode is understanding structural perspective. So to understand the structural perspective today, we invited on our show the one who is not only talented but very good looking. We have on our show engineer Ehab Ali Sarwar. Assalamualaikum. He have a crush on you, I'm sorry. No. Everyone had back in the day. Thank you. Okay. Sir, कैसे आप? बस बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुनाएं. Hope you're doing good. I'm doing very well. Long time no see. Yeah. Busy and stuff. Like you guys. Mashallah. है ना architects के मसले ठीक कर रहे हैं. Yeah, मसले बढ़ते जा रहे हैं. Right. So Ehab, we would like you to introduce yourself to our audience. Yeah. Thank you so much for inviting me. Welcome. And thank you so much for a very generous and kind introduction. Let me tell you about myself. I'm basically a civil engineer by profession, and my specialization is in structures. So I was basically born and raised in Islamabad. All my life I have lived in Islamabad, and just for the 4 years for my undergrad I went to Peshawar, and from there I did my civil engineering, and when I came back I started my career in a design office, structural design office, for 3 to 4 years, and after that, in fact, in the middle of my job I started my masters, and so that's basically my background of my education. And after completing my masters in 2016 I started my own structural design office, and since then alhamdulillah I'm doing structural designs, and now here I am with you. Okay, so मेरा आपसे next question ये है sir. कहते हैं कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स यूजुअली वो होते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स साइड बाय साइड काम करते हैं. I want you to shed some light on the importance of these two professions working together. Yeah. So yes, definitely your question is very valid, and I would say कि architect जो है वो अकेला बगैर सिविल इंजीनियर के कुछ नहीं, और सिविल इंजीनियर बगैर आर्किटेक्ट के कुछ नहीं. In a sense, when it comes to buildings. In a building project, usually the architect is the captain of the ship, or he has to take things according to himself, and the structure engineer, he is basically the core and frontline soldier, his soldier. So basically आजकल भी जिस तरह आर्किटेक्ट्स जिस तरह काम कर रहे हैं, they are experimenting the new things, and for that experimentation and new things, an out-of-box solution is required in case of structures as well. So definitely structure engineer and architect, they have to go side by side, और उनकी आपस में coordination is very important, because definitely the material, the way the things, the construction has to be executed. Architect and structure engineer, they both need to be doing things together. They need to sync, and they have to take things
together. क्योंकि यूजली आजकल ये होता है ना कि आर्किटेक्ट्स को कहते हैं नहीं हम स्ट्रक्चर भी खुद ही कर लेंगे, वो वाली चीज. Basically देखें, architect, being an architect itself is a professional degree. Architecture and architects, they are professional, they know how to execute things, but definitely it's a specified job, structure designing. So definitely engineer की जो एक requirement है उसके अंदर उसका एक part है, definitely उसको आप जो है वो रोल को eliminate नहीं किया जा सकता. राइट. हाँ, आपने बड़ी अच्छी तरह ना डायनामिक एक्सप्लेन किया कि स्ट्रक्चर इंजीनियर्स क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसी डायनामिक को देखें तो वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि आर्किटेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता अगर उसको सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर ना हो, बिकॉज एग्जीक्यूट एट द एंड आप लोगों की हेल्प से ही होना है, राइट. 70s तक पाकिस्तान में हम देखते हैं बड़े अच्छे स्ट्रक्चरली साउंड प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलती थी, अब नहीं मिलती. डू यू थिंक स्ट्रक्चर इंजीनियर्स आर स्कैर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग? बिकॉज बहुत दफ़ा ये होता है कि आर्किटेक्ट वांट टू एक्सपेरिमेंट बट उनको लिमिट किया जाता है बाय स्ट्रक्चर इंजीनियर्स. आपको लगता है ये है या आर्किटेक्ट्स आजकल एक्सपेरिमेंट करने वाले ही नहीं? एक्चुअली पार्शली आई एग्री विद यू, लेकिन इसके मल्टीपल रीजंस हैं. द वे हमारा जिस तरह एज वी हैव प्रोग्रेस, डेफिनेटली कुछ डेफिनेटली ऐसी एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स पाकिस्तान के अंदर समझी जाती हैं, मानी जाती है, जिनके ऊपर जो है आपकी केस स्टडी की जाती है. एंड यस आई एग्री कि वो 70 and 80 के इराज के अंदर, जो इरा के अंदर वो एग्जीक्यूट हुई, बनी. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिसर्च. If I tell you about my engineering, because I'm engineering का स्टूडेंट हूँ और इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक है, तो रिसर्च लैक करती है हमारे मुल्क में. एंड आप इसका यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि when I started my engineering in 2007, I had very few options जहाँ मैं इस्लामाबाद और पंजाब और केपी इस साइड के ऊपर देख सकूँ. आई लिटरली हैड 5 to 6 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज. सो कंसिडरिंग फॉर सच अ हाई पॉपुलेशन, इतनी यूनिवर्सिटीज, दिस इज नथिंग. सो और फिर जो उसके भी जो मज़ीद हमारे उससे जो आपके जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो जब पास आउट होते हैं तो दे आर ऑल्सो मोर tilted towards going abroad and for higher education and or for a better opportunity. तो definitely उसमें कहीं एक्सपर्टीज लैक करती तो है. बट उसके जैसे मैंने कहा मल्टीपल रीज़न है. फर्स्ट कि हमारा जो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है इंजीनियर्स को सपोर्ट करने का वो उस तरह नहीं है. और सेकेंडली जो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो हमेशा से ही काफ़ी शेकी सी रही है, जिसकी वजह से इतने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाए. बिकॉज हमारी जो एक्सचेकर है उसके अंदर इतना बड़ा प्रेशर और एक वो तो फिर उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है. तो डेफिनेटली आप योर क्वेश्चन आई एग्री विद यू. इसमें बहुत दफ़ा होता है कि अक्सर जो भी नई लॉट होती है ऑब्वियसली विद टाइम वो भी ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, दे हैव अ लॉट टू ब्रिंग ऑन द टेबल. हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ पुराने लोग हैं दैट डोंट अलाउ द न्यू जनरेशन पिच इन द आइडियाज़ और टू टेक बोल्डर स्टेप इन इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग. कोई ऐसा इशू भी है? मेरे ख्याल से कि डेफिनेटली एक हेजिटेशन और एक हर्डल तो होती है जब ऑलरेडी एक चीज़ ने परफॉर्म ना किया हो. और डेफिनेटली व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेक न्यू स्टेप्स, ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, तो आपके अंदर एक ऑब्स्टिकल्स होती हैं. और वन ऑब्स्टिकल यू कैन कंसिडर इट एज एन ऑब्स्टिकल, लेकिन बट देन अगेन उसको हमें सपोर्ट करने के लिए अगर हमारे पास हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी अच्छी हो, आपकी जो है वो नई और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स आएँ. और हमारे जिस तरह देखें आप जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उनके मास्टर प्लान्स देख लें और जिस तरह प्रोग्रेस की जाती है, सो यू हैव टू वेलकम द न्यू आइडियाज़ एंड यू हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी ताकि आप एक ग्रोथ की तरफ जा सकें. तो डेफिनेटली बट वी हैव टू क्रॉस दैट बैरियर और लेट्स होप. बिल्कुल. इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही निकला है, वो है कि कम्युनिकेशन गैप है
आई थिंक इंजीनियर्स का आपस में भी और इन दो प्रोफेशंस का, आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, उस गैप को आप क्या समझते हैं कि कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कम्युनिकेशन गैप को? बिल्कुल सही। Like I told you in my introduction कि मुझे तकरीबन now अल्हम्दुलिल्लाह it's more than 12 years now I am in this field और I am very much I fortunately and I am very lucky to work with some very remarkable architects. तो what I have learned in my professional life, आपको जब भी आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो है दो प्रोफेशनल्स हैं, आपको एक अपने सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, आपको एक SOPs अपने बनाने पड़ते हैं फॉर अ गुड कोऑर्डिनेशन एंड व्हेनेवर अ प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड तो आप ऑटोमेटिकली आपके अगर एक आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर को डिफाइन होते हैं कि इन स्टेजेस के ऊपर लॉट ऑफ डिस्कशन इज रिक्वायर्ड, तो वो अगर SOPs और सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली चले तो योर प्रोजेक्ट गो स्मूथली और सेकेंडली उसके अंदर जो है वो एरर्स भी कम होते हैं। तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन मैटर्स और उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसको एक क्वालिटी देने के लिए यू हैव टू मेक SOPs एंड यू हैव टू प्रोफेशनली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। तो फिर आपका जो गलतियों के एरर की गुंजाइश होती है वो कम हो जाती है। I understand what he's saying in terms के बाहर चीज़ें इसलिए बेहतर बनती हैं because उनकी चीज़ें systematic होती हैं, उनका communication is all very clear and they know कहाँ किसको enter करना है, so they're all sorted in that terms। हम इस चीज़ में sorted होते ही नहीं कभी, हमारी चीज़ें इसलिए हमेशा हमारे इसमें ईगो भी बड़ी आ जाती है ना बीच में, I guess। आपके अगर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स अगर डिफाइंड हो ना, फॉर एग्जांपल अ प्रोजेक्ट लाइक मैंने पहले कहा कि देखें एन आर्किटेक्ट especially for a building project, an architect is the nucleus of that project. Engineers, mechanical, electrical, civil, all revolve around him. तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन और आपका एक SOP बने हो जो कि एक क्वालिटी जो है ना प्रोडक्ट को वो बर्थ दे सके, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन हो। बिल्कुल। So Ehab, when I chose architecture, उससे पहले I used to watch the show और उसमें they used to show you कि structural elements जो होते हैं उनकी strength कैसे vary करती है, ठीक है? That was very visual and that basically ignited my interest in architecture, ठीक है? लेकिन जब architecture school में आए हम और structure पढ़ना शुरू किया तो it was all कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशंस जो हमें कभी पता भी नहीं होता हम कर क्यों रहे हैं, राइट? उस टाइम मुझे बहुत दफ़ा लगता था कि अगर हम किसी साइट पे जाके कॉलम की पोरिंग होते हुए देख रहे हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी क्लास में बैठने से ज़्यादा। आपने पढ़ाया एंड आई हर्ड फ्रॉम हिम कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है? आपको क्या लगता है कि आर्किटेक्चर स्कूल में करिकुलम में क्या चेंजेस होनी चाहिए? सो आर्किटेक्ट्स आर मोर सॉर्टेड, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे सब सीखना है जो आपकी फील्ड में, आई वांट टू लर्न, सो व्हेन आई एम ड्राइंग कॉन्शियसली, राइट? कि मुझे पता हो कि चीज़ें वर्क कर जाएंगी। इसके लिए क्या ज़रूरी है आर्किटेक्चर स्कूल में करिकुलम लाना? आर्किटेक्चर के जो पूरी एक अपनी जिसका अपना एक करिकुलम है उसके अंदर मैं as a structure engineer, structure point of view से, because structure is a very a supporting subject, और उसको improve करने में क्या हो सकता है, definitely I can share some of my thoughts। तो एक तो ये है कि जैसे आपने जिक्र किया कि एक तो है कैलकुलेशन बेस्ड एंड द सेकंड थिंग इज मटेरियल्स, ठीक है? स्ट्रक्चर्स में हम जो बेसिकली टीच करते हैं वो यही दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे मटेरियल्स एंड कैलकुलेशन। I get के जो architects होते हैं they are more interested in materials, and the more they get interest in materials, so then they will be willing to go for to learn about their calculation, considering के how this can be actually built और उसको किस तरह जो है हम उसको एक execute कर सकते हैं। या तो considering calculations, हमें focus as an engineer और as a teacher हमारा focus definitely calculations के ऊपर limited होना चाहिए, and we should focus more on material, and that's what I have tried to do, क्योंकि I could see कि जो आपका इंटरेस्ट होता है वो लूज होता जाता है जब उसके पीछे बैकग्राउंड इतना आपको मटेरियल्स का ना हो। सो कंसिडरिंग मटेरियल्स, द मोर you make the architects, your students aware about the materials, the calculation जो उसका एक मटेरियल का सपोर्टिंग
एक चैप्टर बन जाता है, तो then the students start taking interest. in Yeah, so that's what I have tried, but still a lot more has to be done. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी हमने कम्युनिकेशन की बात की और भी इश्यूज की बात की, एकेडमिकली एज अ टीचर एंड वैसे भी जनरली व्हाट वुड यू सजेस्ट टू रिजॉल्व ऑल दीस इश्यूज? आई थिंक कि आपका एक डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए, और जो कि आपके जो टीचर्स हों, और इसको हर आफ्टर एवरी 2 to 3 years इसको रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ एक ये भी इशू है कि जो आपके कोर्सेज होते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं और उन्हीं को ही जो है ना पढ़ाते रहते हैं, वेयरएज के अब विद टेक्नोलॉजी और विद न्यू थिंग्स कमिंग ऑन, तो चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं. सो ये सिलेबस को जो है ना कुछ ऐसे बार रिव्यू करना, और उसके अंदर इम्पोर्टेंट और जो न्यू चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसको इंक्लूड करना वो बहुत ज़रूरी है. नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर आने से सबसे पहले बात की मटेरियल्स हैं, टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स आने शुरू हो गए हैं. हमारे नेबर्स कंट्रीज में बिल्कुल ही चेंज हो गए सिविल आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे भी तो कोई चीज़ है हमको री नॉलेज की बात है. इससे एक रैंडम सवाल आ रैंडम सवाल ये आया कि हमने कहा चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं विद पीपल यूजिंग एआई क्रिएटिंग स्ट्रक्चर दैट यू ऑलरेडी सीन ऑल ऑफ द थिंग्स. आपको क्या लगता है हाउ चैलेंजिंग दैट वुड बी फॉर यू गाइस, बिकॉज़ लोग फिर शायद वो एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं कि इसमें बन सकता है तो ये तो फिर असल में नहीं बन सकता. तो then I would say कि जो AI है उसको आपका कोर सिलेबस का एक इंक्लूड करना चाहिए, so that जो प्रोफेशनल है वो अगर एक चीज है उसको अडॉप्ट करें, और उस चीज को अडॉप्ट करके then again I would say कि IT it's टेक्नोलॉजी का दौर है, और अगर IT के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आई स्पेशली फॉर लास्ट 10-15 years, मतलब आपकी जो चीजें हैं वो बहुत आगे तक जा चुकी हैं. So definitely if AI is to be included, it should be included in the core subject, और जो इंजीनियर्स हैं उनको उसके अंदर इंटरेस्ट, आर्किटेक्ट्स को इंटरेस्ट दिलवाना चाहिए, and they should pursue it. तो एहाब हम आर्किस्तान जो है बेसिकली वो काम करता है टुवर्ड्स द विजिबलाइजेशन ऑफ आर्किटेक्चर प्रोफेशन. ठीक है, आज की वीडियो का मकसद भी ये था कि अगर आर्किटेक्चर प्रोफेशन को हम लाइमलाइट में ला रहे हैं तो सारे लोग जो इंटीग्रल हैं टू दैट प्रोफेशन शुड बी देयर एज वेल, राइट? आपको क्या लगता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल थिंग, उनको उनका ड्यू क्रेडिट मिलता है या सारी चीज आर्किटेक्ट्स को लेकर? जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आर्किटेक्ट इज लाइक अ न्यूक्लियस इन अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट. ठीक है, तो थिंग्स रिवॉल्व अराउंड हिम और हर, जो आर्किटेक्ट. बट व्हेन इट कम्स टू other aspects of engineering, for example, building is one kind of aspect. Bridges, hydraulic structures, dams, and many other जो aspects हैं एक engineering के. For example, as an engineer, मैं जो है वो buildings के अंदर जो है उनकी design calculation के अंदर involved हूँ, and many other infrastructure works. तो on उन चीज़ों के अंदर it's usually engineers who are the captains. So it's about कि जो एक पूरा आपका basically एक project है, project based चीजें होती हैं, और उसके अंदर for example अगर buildings के अंदर अगर architect को एक credit मिलता भी है ज़्यादा, which is true, तो उसकी reason है because he has perceived a project and according to him the things have to be taken. और आफ्टर ऑल उसका एक डिजाइन की चीज है, एंड he has to basically engineer is giving a skeleton into that body. ठीक है, so इंजीनियर का एक पार्ट है, बट yes उनका क्रेडिट बनता भी है आर्किटेक्ट्स का कंसीडरिंग एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट, so it's fine I think, or we should accept it. That's what I think. Yeah, I do not agree with you on that. मैं इसलिए कह रहा हूँ बिल्डिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली. Yeah, no, मतलब जैसे because they've conceived the whole thing, so you're okay with them being so अब जिस whenever if अगर मैं आपको ब्रिजेस के बारे में बताऊँ, so the bridge is usually not designed, it is basically there are types of bridges, and you and उनकी कैलकुलेशन उस टाइप के ऊपर बेस्ड होती है. So
इंजीनियर उस कंप्लीट प्रोजेक्ट का इंजीनियर इज द कैप्टन एंड इसी तरह डैम्स हो गए, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सो इंजीनियर्स आर गिवन क्रेडिट इन दोस थिंग्स, सो इट्स ओके इफ एक चीज में ना भी हो। ठीक है। बट वो हम सुनते हैं ना यूजुअली के लेट्स से रावल डैम पे किस स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने काम किया, किसने काम किया, इंटरनेशनली दे मेंशन पाकिस्तान आपके जो कंसल्टेंट्स होते हैं या बेसिकली, अच्छा इसमें भी दो किस्म के, एक तो कॉन्ट्रैक्टर्स आपके इस फील्ड में होते हैं एग्जीक्यूशन फेज में, एक कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एक कंसल्टेंट्स होते हैं। कंसल्टेंट्स का अपना डिफाइंड जॉब्स होती हैं एंड द कंसल्टेंट्स आर गिवन ड्यू जो उनका क्रेडिट है, और दे आर फेमस, बट क्योंकि बिल्डिंग्स जो है उनका एक लोगों के अंदर एक जो द वे दे सी द बिल्डिंग और उसको जिस तरह सराहा जाता है, तो डेफिनेटली देन आर्किटेक्ट्स को ऑटोमेटिकली एक ज़्यादा मिल जाती है, एज मिल जाती है। So before moving on to our last question, I'm gonna play a pick it quick round. It's like a rapid fire version. जिसमें आपने दो ऑप्शन में से कोई पिक करनी है quickly. First question is, do you like simple structures or complex structures? Simple. कितना simple हो सके? Is it true that an architect's dream is a civil engineer's nightmare? Yes, definitely yes. Yes. Okay. Do you feel you guys can design on your own? Yes or no? Architectural part नहीं, definitely structure में तो हमारे, लेकिन architectural part में I think जिसका जो काम है उसी को ही समझे। हाँ, वैसे ये भी है, ठीक है। Do you think you can design structures for Zaha Hadid architects? Yes or no? Oh sure, why not? उसके अंदर complicated है, but why not? आपकी रिसर्च हमारे इतनी भी जो है वो मतलब ऑब्सोल्यूट नहीं हुई। We can do it. There are software, there are tools, but बिल्कुल किया जा सकता है। और हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत इंजीनियर्स ये महारत रखते हैं ये करते हैं। So it's as a civil engineer, what's easy and interesting? Studying structure or studying managing projects? As an engineer, studying structure. Right. So last is structurally, what's your favorite building, both locally and internationally? जो आपकी कराची की हबीब बैंक की बिल्डिंग है, phenomenal है। I guess उसका डिजाइन, it's architectural point of view, it's too good. Yeah. And internationally? Internationally, I think Burj Khalifa. Yeah. एक Burj Khalifa बस ला रहा हूँ। Right. So lastly, I would like to ask your reviews on Archistan. Archistan, I believe it's a great initiative, a great platform, and I would say not just for architects or people related to architectural work, but for people who actually want to hear about architectural things or architects related चीजें. So I think it's a great platform and all the best to you. Thank you. So firstly, thank you very much. फिर आप आए और आपने हमारे इस सेशन को काफी इंटरेस्टिंग बनाया और काफी हमारी क्वेरीज रिजॉल्व की हैं. Thank you for taking your time out. Thank you so much. Thank you for invitation. बहुत अच्छा लगा. So आज का जो हमारा टेक अवे था वो ये था कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स का साथ साथ काम करना बहुत जरूरी है. If architects are the captain, then engineers are the frontline soldiers. दूसरा ये कि हमारे यहाँ हमने बात की थी लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड लैक ऑफ रिसर्च की वजह है बहुत बड़ी. रिसर्च नहीं हो रही, हम नई चीज़ों को देख नहीं रहे और इजी वे आउट हम हमेशा उस पर जाते हैं, चैलेंजिंग चीज़ों को हम नहीं करते हैं. तो इसलिए हमें नई बिल्डिंग जो है नजर नहीं आ रही और कुछ हद तक हम इसमें इकोनॉमी को भी ब्लेम कर सकते हैं. थर्ड ये था कि प्रॉपर अगर सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को लेके चलें तो कम्युनिकेशन बैरियर्स को हम कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स को स्मूथली लेके चल सकते हैं. और लास्टली ये कि जिस तरह से टाइम हमारे चेंज हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, अगर हम एकेडमिकली भी हर 2 से 3 साल बाद अपने सिलेबस को रिव्यू करें तो नए स्टूडेंट्स जो हैं हम उनको नई चीज़ें भी सिखा सकते हैं ताकि उनके लिए आगे आसानी हो. Alright, so that was it. I hope you find today's episode very interesting. So visit our website www.archistan.com and do not forget to register. It's free.
And also do not forget to follow us on our socials. And please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We hope you liked our today's episode. We'll see you inshallah in next one with a new guest and a new topic. Till then, Hafiz.